Hello students, very good morning and how are you all? Okay, I hope you will be well. So now today we will discuss about chapter 1 class 9th number system and exercise 1.3. In the last video we have discussed about the exercise 1.2 and 1.4. So now we are going to start question number 1. Okay student, question number 1 says that write the following in decimal form and say that kind of decimal expression each has. As you know, you have to describe this, you have to solve this and find out what kind of this number, right? So first point is that 36 by 100 equal to 0.36. You know, if it is not a non-terminating and it is not recurring, as like that it is not continuous going on, so it is terminating. Second example is that in a denominator, if you will factor of 100, then you will get only two numbers, 2 and 5. It means the denominator factor have only 2 and 5 numbers. That is called, it will be terminating number. It will be terminating number. Now point number second part, right? Question number first and second part. 1 by 11, when you will divide, then 0.09 and 09 and 09 dot dot dot, it means to infinity. When you will divide by 11 to 1, then you will get 0.09. This is bar, we can say that. It means 09 is not, it will not be stopped, right? It will be continued, 0.090909. Okay, then it is also terminating. Oh, rational number. Okay, yeah, it is rational number, but focus on this one. It is non-terminating. Non-terminating, it means, what is non-terminating? Non-terminating, it is not a exact divisible by 11. It has not a factor of 2 and 5 in denominator of the rational number, of the fraction. Is it clear now? So it is non-terminating, but it is repeating. As you are looking there, 09, 09, 09, repeating decimal, non-terminating, because it has not factor of 2 and 5 in a denominator. So question number 2. Question number 2, this is very easy, but focus on the question. Okay, read carefully. You know that 1 by 7 is equal to 0.142857 dot dot dot. It means it will be repeat again. Now can you predict what the decimal expression of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7? Okay, and are without actually doing the long division? If so, how? In your language, we can say that if you will divide by 7 in 1, then you will get this one, or we can say that 142857 and it is the bar. It means it is continuously repeating. So now 2 by 7, if we talk about 2 by 7, then we will get 2 into 1 by 7. We can write, check here, and 2 into 1 by 7, but we know very well about the value of 1 by 7, 0.142857. Then you will multiply and you will get this one, and check there
and it is those number which is written here, right? But it start from 2 and it start from 1. Is it clear now? Okay, so now that is the process for the every point, every rational number. Check here, and all digits which I have given in 1/7, then all are repeating here. But 3/7 it start from 0.4, and 4/7 it start from 0.5, and 5/7 it start from 7, and 6/7 it start from 8, right? But digits, all digits are same, all digits are same. So it's a very easy. Next, question number 3, it's a very easy, so focus on question number 3. Question number 3, express the following in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So student, we will discuss about in a Y language, because some students has a problem. So now we will start the first part, right? First 0.6 it is a var, you know. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और देखते हैं हमने क्या किया कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा और रुकेगा नहीं तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। तब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से दोनों तरफ। तो x में मल्टीप्लाई किया मैंने तो 10 आया, और इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता है कि 10 का मल्टीप्लाई करने पर एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 6 इधर आ गया, पॉइंट इधर आ गया, फिर अगेन चलता ही रहेगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि टर्मिनेटिंग नहीं है, रिकरिंग है, कंटिन्यूस चल रहा है। तब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि 10x इज इक्वल टू दिस वन, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ये क्वेश्चन नंबर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो मैंने लिया। अब मैंने देखा कि जब दोनों में सेम आ गया नंबर, तब दूसरे से फर्स्ट को माइनस किया। सॉरी, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दिया। चेक करो, और माइनस करने के बाद क्या देखा, सेम नंबर आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं, तो वो तो माइनस करने पर कट ही जाएंगे, दैट इज 6। ओके, तो 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, इट मीन्स 2/3। तो p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, ये देख पा रहे हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में आया, चेक कर पा रहे हैं हम, और यही बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, वो भी सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बार देखते हैं। ये देखिए, x इज इक्वल टू 0.47 टू द 7 के ऊपर वार दे रखा है ना। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। पहले मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, क्योंकि ये डिजिट मुझे बाहर निकालना है, तो इधर आएगा कि 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसमें हो गया 10x। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 777 इन्फिनिटी तक लिख सकता हूँ, क्योंकि बार का मतलब ये होता है कि आपको 7 लिखते रहना है ना। ओके, तो आप पहुँच गए इक्वेशन नंबर 1 पर। अब पहुँचते हैं अगेन, लेकिन ये तो कहानी वैसी ही आ गई जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। अब लेकिन बनी अब जब 10 का मल्टीप्लाई किया है हमने, तो फिर अगेन 10 का मल्टीप्लाई किया किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 7 पहले आ जाएगा, और 7 की कहानी सेम रहेगी। बच्चों, इस पर फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिटी तक है, कितना भी ले लो ये फिर सेम का सेम रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आया, कहानी फिर वही, 2 से 1 को माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, देन 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.777। कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है, माइनस करके 4.777 कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। तो ये वाला पार्ट कट जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, और 47 से 4 जाएगा तो 43 बचेगा। 90 100 माइनस 10 90x, और x इक्वल टू 43/90। चेक करो, p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। यही तो करना था। अच्छा, ये नहीं चेक कर पा रहे आप लोग, ये अब तो चेक कर पा रहे हैं, तो बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है। चलिए नेक्स्ट पहुंचते क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी है, मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि 0.999 करके दे रखा है, इसको PYQ के फॉर्म में लिखना है और आप सरप्राइज़ करेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है ना। जब आपका आंसर आए तब डिस्कस करना कि क्या आपने इमेजिन किया था और क्या आएगा। वैसे मैं बता दूं आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर है, तो वही है। ओके, तब मैं क्या बात करता हूँ, हाँ मैंने सरप्राइज़ किया, इधर से लिख दिया और उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। वी आर सरप्राइज एट योर एन आवर आंसर। अपना आंसर जब देखा तो वास्तव में मैंने बताया कि सोचा कि कमाल का आंसर आया। चलिए अब बात करते हैं x, ये है हमारा, मैंने ये बताया था 10 का मल्टीप्लाई करना है, क्यों एक डिजिट इधर आएगा, तो 10x इक्वल टू दिस वन। फिर क्या करना है, 2 से 1 को माइनस करना है, 9x इक्वल टू 9। चेक करो, 9x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 1। तो मेरे बच्चे यहाँ तो 9 दिखाई दे रहा है, या 1 कैसे आ गया, और 1 बाई 1 रेशनल नंबर होता है ना, तो PYQ की फॉर्म में हो गया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो आप देख पा रहे 1 आया। क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी है, एक बार पढ़ दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आप पढ़ेंगे एक बार वीडियो को पॉज करके और उसके बाद बता देना है आपको कि 17 का डिवाइड करेंगे 1 में तो कहाँ पे जाके रिपीट होगा। खुद डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे? आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है मेरे बच्चे। तो ध्यान दें, मैंने इसका आंसर बता रखा है, लेकिन आपको ये नहीं देखना, आपको डिवाइड करते रहना है जब तक कि ये रिपीटेशन ना आ जाए। फिर से बताता हूँ कि 17 का 1 में डिवाइड करना है और जब तक डिवाइड करना है जब तक कि इसको रिपीट ना होने लगे ये नंबर। तो इतनी बार जाएगा उसके बाद रिपीट होगा, मैंने लिखा है यहाँ पर, लेकिन आपको ये नहीं देखना, पहले डिवाइड करना है उसके बाद चेक करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहे हैं, क्लास 9th की, नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर in the form PYQ, Q is not equal to 0 where P and Q are integers with no common factors। चेक करो, बड़ी अच्छी बात बोल दी इसने कि no common factor other than 1 and having terminating decimals, representation, expansions। और फिर क्या बात बोला इसने कि can you guesses what properties Q must satisfy। चेक करो, हम बात कर रहे हैं कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेने और बता देना है आपको कि किस टाइप का नंबर है, ठीक है। वेरी सिंपल, आपको खुद ही एग्जाम्पल लेना है, खुद ही बताना है, तो आप बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, और एग्जाम्पल को लेने से पहले मैं बता दूं कि अगर टर्मिनेटिंग की बात होगी तो न्यूमरेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर की बात करेंगे, जिसमें 2 and 5 ओनली 2 and 5 फैक्टर होंगे, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो एग्जाम्पल लिया मैंने 5/8 इक्वल टू दिस वन 0.625। आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको मिलेगा ये, बट फोकस ऑन दिस नंबर 0.625। व्हाट इज दिस? इट इज़ अ टर्मिनेटिंग, बट वाई? बिकॉज इन अ डिनोमिनेटर you are looking here the 8. If you will factor of this one, then a 2 into 2 into 2। मैंने वही बताया था आपको कि 2 या फिर 5 with 2 and 5 दोनों ही हों। बात क्लियर है ना? तो वही आ गया ना, इसमें क्या आ रहा है 2, तो टर्मिनेटिंग हो गया ना। चेक करूँ नेक्स्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको खुद लेने, खुद करना है, खुद चेक करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी बड़ी आसान है और कोई 3 नंबर लेने हैं आपको और दिखाना है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। एक्चुअली मुझे कुछ वो याद आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो चलिए, मैं वैसे 3 नंबर से दे रखे हैं, आप इनसे डिफरेंट नंबर लेंगे और लिखेंगे और चेक करेंगे। एक लिखा है 0.04 004 0004, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा। ध्यान देने वाली बात है कि 0 और 4 आ रहे हैं, बट यहाँ पर 2 zeros हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 and 4 है, मतलब जीरो की संख्या एक बढ़ रही है। इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं है। सेम कंडीशन सब में आप डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के आप शो करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की भी कहानी ऐसी है। ये देखिए इंडिपेंडेंट एलिमेंट, कोई बात नहीं, तो आप खुद करेंगे उसको।
इसमें 2 नंबर दे रखी, इनके बीच के नंबर जो कि इरेशनल की बात की गई है, 3 डिफरेंट नंबर की बात करेंगे तो वो आप खुद देखेंगे। ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए, नहीं देखेंगे तो आप देख लेंगे, सॉल्यूशन हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते ही, बहुत ही आसान क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से आप लगे हैं तो मुझे पता है कि मैथ्स में एक तरफ फोकस होने से ना कुछ भूल जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप देख पा रहे हैं RS शेखर बार मैथ्स पॉइंट, आप देख रहे हैं RS शेखर बार मैथ्स पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है कि आपको चेक करना है, बताना है, क्लासीफाई करना है कि जो नंबर दिए हुए हैं वो रेशनल हैं या फिर इरेशनल नंबर हैं। तो देखते हैं, अगर रूट 23 की बात करता हूँ तो ये इरेशनल होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। सर आपको कैसे पता? हाँ मुझे पता है, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो न तो टर्मिनेटिंग आएगा, न तो वो कभी ख़त्म होगा, न तो कभी फिनिश होगा उसका डिवाइड, कंटिन्यूस चलता रहेगा और रिपीटिंग भी नहीं आएगा। दैट इज़ कॉल्ड इट इज़ इरेशनल नंबर। सो नेक्स्ट, √225 ये रेशनल है। सर ये कैसे? अभी तो आपने इरेशनल बताया था। हाँ बता देता हूँ, अगर इसको आप इसका रूट निकालते हैं तो 15 आएगा, क्योंकि 15 जा 225, सो इट इज़ रेशनल नंबर। आप कहेंगे सर इसके नीचे 1 नहीं है, इसके नीचे क्यों नहीं है? तो क्यों बना लो ना, किसी भी एक नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, बशर्ते वो इरेशनल नंबर ना हो। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखो ज़रा, जो 5th वाला है, समझ लेते हैं उसको। ये देखें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें आप, बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। देखें, ये देखें ज़रा, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 5th, 1.10, वही कंडीशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में पढ़ी थी, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इट मीन्स इट इज़ अ इरेशनल नंबर। चेक करो, डेफिनेशन को ध्यान करो, याद करो कि जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। तो वही तो बात बोली गई है ना, इरेशनल नंबर है। चलिए, एक्सरसाइज फिनिश हुई। आई होप आपने बड़े इंटरेस्ट के साथ में पढ़ी होगी एक्सरसाइज, और फोकस करेंगे, रिपीट करेंगे, एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच।